Good morning, grade 6 students. Today's topic is HCF and LCM based on word problems. So, for solving the word problems, we need to take care of some keywords through which we can solve it easily. So, let's see the keywords: maximum, largest, biggest, greatest. So, these types of keywords will be using in HCF. Finding of HCF, highest common factor. हाईएस्ट मीन्स हाई, ऑलरेडी मैक्सिमम ज़्यादा की बात होती है यहाँ पर. मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, सो दे आर combined to each other somewhere or else. What about this minimum, lowest and smallest? The minimum, lowest, smallest based on LCM. So through these keywords we can find out what exactly we have to find out in the word problem, HCF or LCM. So let's see one or two example to make it more understandable or make it more easy. Yes, look at question number 10. 3 frogs jump 12 millimeter, 13 millimeter and 14 millimeter in one jump. If they start together, find the minimum distance after they would be together again. Also find the minimum number of jumps required by each frog to reach the same place. Okay, here they are talking about the 3 frogs. They are talking about 3 frogs where they start jumping of 12 millimeter, 13 millimeter and 14 millimeter respectively by the 3 frogs. So you can see here, this is the starting point. अगर ये तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं जंप करना, तो फर्स्ट फ्रॉग जो है वो 12 मिलीमीटर जंप करता है. तो आई हैव रिटन हियर. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट फ्रॉग कवर्स 12 मिलीमीटर इन वन जंप. सो सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट जंप में इतना कवर कर रहा है 12 मिलीमीटर. व्हाट अबाउट द सेकंड? तो F2 इज सेकंड फ्रॉग जो कि कवर कर रहा है कितना, 13 मिलीमीटर इन वन जंप. एंड थर्ड फ्रॉग जो है 14 मिलीमीटर इन वन जंप. तो थर्ड फ्रॉग ज़्यादा जंप कर रहा है यहाँ तक आगे. देन वापस से अगेन जंप करेगा फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर कहीं आएगा, फिर उसके आगे और जंप करेगा तो यहाँ आएगा. तो समथिंग आगे कहीं ना कहीं ये आगे पीछे ही जंप करते होंगे एक दूसरे के, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये था इनका. नाउ द क्वेश्चन इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट, find the minimum distance after which they would be together again. Means we have to tell कि ये तीनों फ्रॉग्स जब स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करा है तो आगे कौन से पॉइंट पे जाकर ये तीनों जंप करते करते एक ही पॉइंट पर आएंगे एक साथ. सो फॉर दिस वी कैन यूज़ वन कीवर्ड हियर. यू कैन सी minimum distance, minimum. So as I told you in keywords, minimum is will be using for LCM. So we need to find the LCM here. So let's see. अगर फ्रॉग 1 12 मिलीमीटर जंप करता है, देन सेकंड जंप में 24 मिलीमीटर पहुंचता है, डिस्टेंस कवर करता है, फिर 36 मिलीमीटर कवर करता है, इन द सेम वे 48 मिलीमीटर कवर करता है. F2 13 के हिसाब से कवर कर रहा है, 13, 26, 39 मिलीमीटर, 52 मिलीमीटर. F3 जो है 14 मिलीमीटर फर्स्ट जंप कवर करता है, 28 मिलीमीटर सेकेंड जंप में कवर कर लेता है, तो इतना 56 मिलीमीटर. तो ऐसे चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक ही कॉमन पॉइंट पर तीनों फ्रॉग्स एक साथ जंप करके आएंगे. तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कितने मिलीमीटर दूर पर होगा, कितने मिलीमीटर दूर होगा वो. लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ LCM. देन द मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच दे वुड बी टुगेदर अगेन. LCM ऑफ 12, 13 and 14. So we have used here division method for finding out LCM. You already know how we solve it. Then in this way we found 1092 millimeter. So total distance covered by all the 3 frogs 1092 millimeter. So on 1092 millimeter they will be together. One more question they have asked here. Also find the minimum number of jumps required by each frog. Now you have to tell one more thing कि each frog will be how many jumps will be there to cover the 1092 millimeter. So we just divide 1092 with 12, with 13 and with 14 respectively. So 91 jumps for first frog, second 84 जंप्स करेगा एंड थर्ड वाला 78 जंप्स करेगा. तो इतनी जंप्स में वो कवर कर लेंगे 1092 मिलीमीटर का डिस्टेंस. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द LCM बाय यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम. ओके, so let's see into the next problem. You have
2 strings of length 12 cm and 16 cm respectively. हमारे पास 2 strings हैं 12 cm and 16 cm लंबी. What is the largest length of string that can be used to measure both the strings exact number of times? यहाँ पर 2 strings जो दी हुई है हमें वो 12 और 16 सेंटीमीटर की दी है, लेकिन हमें एक और स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना होगी ताकि उसकी लेंथ से हम 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर को इक्वली मेज़र कर पाए. इक्वली मेज़र मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मेज़र करने पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचना चाहिए. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन. यस, वी हैव 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग. ये डिस्टेंस जो है इतना, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 इन द सेम वे 12 सेंटीमीटर है. हियर वी हैव 16 सेंटीमीटर लंबी. इतनी लंबी 2 हमारे पास स्ट्रिंग्स है. अब इनमें हम कितनी लंबी एक स्ट्रिंग छोटी हम कितनी लंबी स्ट्रिंग निकालेंगे जो इन दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वली मेज़र कर सके. सपोज़ अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ तो 2 2 2 या 3 सेंटीमीटर लेता हूँ तो 3 सेंटीमीटर के हिसाब से 3, फिर आगे का 3, फिर आगे का 3. हियर ऑल्सो आई कैन टेक, इफ़ आई एम टेकिंग 3 हियर, तो हियर ऑल्सो वी हैव टू टेक 3. तो 3 के हिसाब से कितना आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बच रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द नंबर इज. सो विद द हेल्प ऑफ HCF वी कैन फाइंड आउट दिस. हाउ आई केम टू नो HCF will be using here. So by the word, which word you can see here, largest length, largest, as I told you in keywords also, largest here, largest is using for HCF. तो हमें HCF फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट स्ट्रिंग 12 सेंटीमीटर है, सेकंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमने दोनों का HCF निकाला यहाँ पे 12 का 16 का इंडिविजुअली फैक्टराइज करके. देन कॉमन देखा हमने फैक्टर जो 2 है, 2 है, 2 का पेयर बन रहा था, 2 2 जा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक अलग से स्ट्रिंग ले सकते हैं हम जो इसको इक्वली मेज़र कर पाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी, वो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं छोड़ेगी. अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 3 आता है, यानी कि 12 इज़ डिविजिबल बाय 4. एंड 16 को भी डिवाइड करते हैं 4 से तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. हाँ, यहाँ आई हैव वन क्वेश्चन. अगर यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, कि अगर HCF मान लो कि मैं 2 ले लेता 1 से, तो इन दैट केस अगर मैं 2 से भी डिवाइड करूँगा 12 को और 16 को, तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट लेंथ. तो लार्जेस्ट लेंथ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, लोवेस्ट नहीं निकालना है. तो 2 विल बी द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, बट हमें हाईएस्ट निकालना था तो दैट विल बी 4. तो 4 मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग और ले सकता हूँ जो इसको बराबर ही मेजर कर सके. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टॉपिक.